letters today too, ठीक है। तो मैंने जो अपलोड किया हुआ है आज आप लोग की क्लास में, वही लेक्चर है, इसकी स्लाइड्स है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। These are business letters, ठीक है। So whenever we talk about business interaction, business interaction is a bit different from all the social interactions that we have, ठीक है। क्योंकि in social interactions or in these type of interactions or discourse, we can like have some creativity, or we can talk in detail, or we can narrate stories. But when it comes to business interactions, it should always be concise, ठीक है। There should be some particular formats to follow, there are some rules to follow, right? Unless and until you follow these rules, you won't be able to run a business, ठीक है। So for every business, like there are audiences, and you will be able to write for the audience, ठीक है। So what is like, how will you write or how will you interact them, like what will be your written communication or spoken communication, ठीक है। So like in the previous lecture I discussed with you कि आप लोगों ने कौन से rules follow करने हैं both in written and in spoken communication, but today I want to discuss about particularly written communication, that is business letters, क्योंकि letters भी हम लिखते हैं। Nowadays people think that letters are obsolete, they are outdated and people do not write them, ठीक है। But in case when we talk about personal communication, or we can say कि हमारा जो social communication है, जो हम अगर फैमिलीज पहले लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को, तो अब वो कुछ नहीं है। वी हैव व्हाट्सएप, फोन नंबर, वी कैन हैव अ वाइबर, वी कैन यूज सो मेनी अदर मीडियम, अदर मीडिया, ठीक है। तो लाइक अब वो इंटरेक्शन नहीं है। इन दैट केस इट्स आउटडेटेड, इज एब्सोल्यूट। बट in business interactions, or we can say when you want to run a business, ठीक है, you will all, or an organization, you will always be needing to have a business letter, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि now it's obsolete in business interactions. You might have seen you are writing applications to your chairman, या फिर किसी और टीचर को लिखते हैं, the higher authority, you request them to do something for you, to allow you to make a society, or we can say to make an organization, or to apply for something, or to request के आप वो scholarship आपको दे दे, ठीक है। So these applications are basically the formal letters that you write, ठीक है। तो how to follow some rules, or what rules should be followed, or what should be the format of these writing these letters, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं any business will have to correspond in writing with with its customers, branches, suppliers, and bankers, and other with whom it has or would like to have a lasting relationship, ठीक है। So when you want to have a lasting relationship, you will always be writing things, ठीक है, because जाहिर बात है, you will be making promises, things like that, ठीक है। So if you are writing a letter to them, ठीक है, so that is a written record that they keep with themselves, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि now it's like it is replaced by emails. People write emails and they can like write to people within seconds, and they can convey their message within seconds, and they can send it to other countries even, ठीक है। But if we compare email with a business letter, it is like business letter or the written communication is in this case is more trustworthy, okay? Because emails, in emails anybody can make an ID and they can send you a message. They can be serious messages, okay? And by the end of the day they can deny the message कि उन लोगों ने तो ये किया ही नहीं था, ठीक है। But even like if we see the format or the oral format of emails, or business emails are just like the business letters, okay? The only difference is the medium, that they are
sent through electronic media, and the other one is that we put our ink to paper, we write them, and then we send it through some post, by posting them. Okay. So these are business letters. Now, business letters serve as a means to reach out to people not only within the locality and neighborhood, but also in other cities and nations, right? But if we talk about business letters for a locality, like I mean, within the organization, you need to learn how to write letters because you will be needing them. अब हमारे लोकेलिटी में जो भी बिजनेस का हम कोई इंटरेक्शन हो, सो इट विल ऑलवेज बी थ्रू लेटर्स बिकॉज दे आर मोर फॉर्मल and they are more effective and people write it right. And when you see that sometimes the message is complex, so you won't be able to call the people or you won't be able to message them directly. So the best way or the appropriate way is to write business letter and send it. So that will be a more formal way, क्योंकि वो message अगर complex है, आप जाहिर बात है आप फोन पे वो नहीं कह सकते, आप डायरेक्टली फेस टू फेस कन्वर्सेशन पे नहीं कर सकते. सो द लेटर इज द मोर एप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग दैट कॉम्प्लेक्स मैसेज. ठीक है. Business letters serve as a mean to reach out to people not only within the locality and neighborhood, but also in other cities and nations, right? They represent you when you conduct transactions in writing. They have become such an integral part of everyday business that one cannot think of running a business without the related correspondence. Okay? When you do not have any correspondence, you won't be able to run a business. Okay? So letters are important in a way that they are a type of interaction and they are there, right? They are vital for running a business. यहाँ पे अब जो मैंने बात की ना कि दो देयर आर मेनी मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड्स अवेलेबल दीज डेज, traditional business letters still retain their importance in the business world for the following reasons. और वो reasons ये है that just as your personal letters help you keep your personal relationship with your friends and relatives alive, business letters assist you in sustaining the same relationship with your customers and business, okay, and other businesses. They are the appropriate form of communication when the information you wish to convey is complex. Again, I said and I discussed with you कि अगर कोई मैसेज इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये कभी नेगेटिव मैसेज भी होगा. ठीक है. सो यू वोंट बी एबल टू टॉक अबाउट दैट थिंग डायरेक्टली ऑन फोन कॉल और अ मैसेज. तो इससे अच्छा है that you write, you put your ink on a paper and you write and then you do. ठीक है. तो अगर for example if we teach इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो अगर हमारे डिपार्टमेंट को हमारे खिलाफ कोई लेटर, अगर कोई देयर इज अ मैसेज, ठीक है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि द चेयरमैन कॉल टू आवर चेयरमैन और दे आस्क के योर फैकल्टी जो है वो इन्होंने ये कुछ नहीं किया. ठीक है. फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दे सेंड लेटर्स, राइट, बिकॉज दे आर मोर फॉर्मल एंड दे आर मोर इफेक्टिव and they are like kept as a written record for we can say for the people के उनकी कितनी complaints आई हुई है और कितने अच्छे comments आए हुए, so all that, so it is always in written form because that message is complex. ठीक है. They serve as permanent records and are valuable repository of information which you can refer to in future. Now this was all about, like, this is a general discussion. आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जनरल डिस्कशन में इसका पर्पस क्या है, व्हाई वी राइट लेटर्स और थिंग्स लाइक दैट. ठीक है. तो द मेन पर्पस इज दैट लाइक समटाइम वी वांट टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट अ न्यू आइडिया और इनोवेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं. ठीक है. तो वी राइट लेटर्स और इन जनरल हम लेटर्स लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ न्यू आइडिया अबाउट समथिंग और मेकिंग अ मशीन और मशीन के कोई पार्ट्स के बारे में कोई न्यू या इन्वेंशन है या न्यू आइडिया है या इफ देयर इज एनी इनोवेशन, सो इफ योर चेयरमैन wants to inform all of you, so he is going to write a report or he is going to write a letter. ठीक है. और वो सबको, and he can even notify that thing के this we are having this facility, we want to have this a new idea, we want to inform all the students, all the faculty or people like them. ठीक है. To congratulate, मतलब जब आप
you want to wish somebody, ठीक है, a good news. And to inquire means to ask about a product. To order a product. To request means to, if you are having any request, you will be writing application letters, ठीक है, जैसे आप चेयरमैन को लिखते हैं, चेयरपर्सन को लिखते हैं. To collect dues. To complain, if you order an order, if you order a product and that is not up to the marks, so you will be writing a complaint letter. And to sell a product, इसको हम सेल लेटर्स भी बोलते हैं, a service or a scheme. इसका एक और तरीका भी है, आप लोग जो ब्राउशर्स देखते हैं उसको भी हम लेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है. जो ब्राउशर्स होते हैं, जैसे हमारे पास पैम्पलेट्स होते हैं, जो आप किसी भी रास्ते से गुजर रहे होते तो आपको लोग जो है वो दे देते हैं, ठीक है, कि वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर अकेडमी एंड वी आर हैविंग दीज फैकल्टीज, और वो ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है. सो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, दे कैन गो एंड दे कैन टेक एडमिशन, एंड इन रिटर्न they will get money, right? So it's basically to sell a product, service, or a scheme. To apply for a job. To apply for a job is the main letter that we want to learn, that I want you people to learn how we can write a job application. इसको हम जॉब एप्लीकेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कवर लेटर भी बोलते हैं. कवर लेटर इसलिए that when you will be able, hope so, that after getting this engineering degree, the first document that you will be writing is your resume or resume, both the way you can pronounce, or CV, ठीक है. So when you include your information about your जो भी आपका टारगेट है, दैट वांट टू डू समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जब आप वो सारा इंक्लूड करते हैं इन अ रिज्यूमे और अ सीवी, so the next thing you do, you write a cover letter with that as well, because I'll discuss resume with you. Over there you include all the information in bullets form, ठीक है. वो सिर्फ bullets में होते हैं या फिर points में होते हैं. Points जो है वो more effective है, but they aren't that much persuasive the way we write a paragraph. So a job application is basically it does the function of persuasion, right? So you write in paragraph form में, इसमें 3 paragraphs पर होते हैं. You write in paragraph कि आपके पास ये knowledge है, आपने कहाँ से ये सीखा है, you have these experiences and you have this degree and you got this degree from this organization, ठीक है. So over there you discuss yourself, ठीक है, as if you are sitting in front of a potential employer, या फिर किसी मैनेजर के सामने बैठे हुए, and you are discussing yourself, right? So how to discuss yourself in that letter, we will be discussing it in detail, right? लेकिन if we see the function or the purpose of the letter or in the letter, there are so many types of letters on the basis of their purpose. As I said, ke inquire kar sakte, you can sometime order or collect. So on the basis of those, we have we can say types of inquiry letter, they are order letter, they are sale letters, they are cover letters, they are letter of recommendation. For example, if somebody wants to recommend you to another organization, right? So he is going to write a recommendation letter for you, or sometimes they will ask you to write a recommendation letter, और वो फिर sign कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है. So how to write a recommendation letter means, ठीक है, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आपको recommend करते हैं. कवर लेटर जो डिस्कस किया, it's that. order letter यही है कि when you want to order a product, you might have ordered something, क्योंकि आजकल तो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, ठीक है. तो आप इस एड्रेस को ये चीज चाहिए आपको, that's basically the order letter that you write yourself, और वो फिर वो चीज वो उसी एड्रेस पे भेज देते हैं, ठीक है. So if that product is not up to the mark, और वो उसमें वो qualities नहीं है, so you will be writing a complaint letter. जब आप message करते थे, the thing was not up to the mark, or it doesn't carry the same characteristic I was ordering at the time, ठीक है. तो उसके बाद फिर वो adjustment कर लेते हैं कि ये तो आप ये और product भेज देते हैं, इसको letter होता है, फिर ये सब लिखा
ठीक है, या फिर आपको कहते कि दिस लाइक यू वर सेंड द मनी बैक ऑन यूर वी कैन से यूर अकाउंट या फिर इस तरह की, ठीक है। तो दैट इज एन एडजस्टमेंट लेटर। अब बिजनेस रिलेशंस में मतलब ये तो बिजनेस रिलेशन हो गया, अब उसमें आप कहानियां नहीं बता सकते, बट यू कैन ओनली गो फॉर द एग्जैक्ट कॉन्साइज मैसेज, ठीक है। So that was like I was talking about ke now there are so many types of but them. So you have to follow some rules that these rules are to keep your profession alive, और या जो आपका प्रोफेशनल इमेज है you have to keep that alive, ठीक है। तो एक है सेंटेंस के राइटिंग फॉर बिजनेस ऑडियंस इज यूजुअली क्वाइट डिफरेंट देन राइटिंग इन द ह्यूमैनिटीज। Why? Because social sciences or what other academic disciplines जो है उनमें से you try to sometime to persuade people, sometime you can go for more details or things like that. People are more like to listen to you, but in business relationships people do not have that much time. जैसे business writing strives to be crisp and concise, ठीक है। it should be crispy and it should be concise, ठीक है। concise का यही मतलब है कि people won't be having time to listen to your stories. So if you are writing a complaint letter and you start from the very start कि I got the product और फिर मैंने उसको खोल दिया और फिर वो उसमें ये सब कुछ ऐसा था, ठीक है। So they aren't going to understand what you want to write, ठीक है। So the thing is that you must be concise, you must be crispy in your writing. Like it is more concise than creativity. Like you can bring creativity in your novels or stories, or we can say in your essays, because they are more like academic writing. But in business writing or these technical writings, like you must strive for some crispy and some concise writing, okay? They may be creative, but they aren't that much creative, because when we bring creativity in things, we always go for compound and complex sentences, because compound or complex sentences जो है they can help you bring creativity or bring continuousness in a text, ठीक है। और लेकिन इसमें जितना हो सकता है आप सिंपल सेंटेंसेस यूज करें, आप क्रिस्पी सेंटेंसेस यूज करें, ठीक है, और आप शॉर्ट यूज करें। इसका ये मतलब नहीं है, कहते हैं द डिस्टिंक्शन डजंट मेक बिजनेस राइटिंग सुपीरियर और इंफीरियर टू अदर स्टाइल्स, रादर it reflects the unique purpose and consideration involved in writing in a business context, ठीक है। So when you write a business document, you must assume that your audience has limited time in which to read it, and like they are going or they are likely to skim it, ठीक है। सिर्फ सरफेस रीडिंग करेंगे क्योंकि उनको बस मैसेज चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। योर रीडर्स हैव एन इंटरेस्ट इन व्हाट यू से इन सो फॉर एज इट अफेक्ट्स देयर वर्किंग वर्ड. They want to know the bottom line, the point you are making about a situation or the problem, or how they should respond, okay? So business writing varies from conversational style, often found in emails, messages, to the more formal legalistic style found in contracts, ठीक है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं किसी, तो उसमें तो फिर लीगलाइज भी है, ठीक है। उसमें फिर आप स्वीपिंग स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते, उसमें फिर आप जनरलाइज मतलब जेनेरिक बातें भी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी कॉन्साइज, ठीक है, और वो फिर बहुत फॉर्मल हो जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट के देयर आर लाइक सो मेनी letters, but how to write them? There should be a format, or there should be a proper format to follow them. As I said के आपका conciseness तो एक side पे, आपका जो because आप जो time management है आप उसको कैसे देखते हैं, और at the same time how will you convince them, ठीक है। बट एक और तरीके से, एक और तरीका भी है कि whether you are using the vocabulary, or whether you use the format is correct one, because it can create a very negative image about you कि आपको तो letter writing
राइटिंग का भी तरीका नहीं आता, तो फिर लोग कहते हैं कि बिजनेस तो दूर की बात है, इसको तो बिजनेस लेटर्स भी राइट करना नहीं आता, तो that's a very negative image that you create about yourself, ठीक है. So writing the particular format for the letters, or writing in a good way or efficient way or presentable way is also can also bring persuasiveness to the letter, because people can enjoy your writing, or they can see that you are a professional person, ठीक है. You have kept all the rules and your mind, the rules in your mind while writing the letter, ठीक है. So I'm going to discuss the structure of the letter, ठीक है. I want to open another tab, that is, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न, ठीक है. इसलिए भी क्योंकि आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं आता, फॉर्मेट नहीं आता, हाउ टू राइट समथिंग, तो कोई फायदा नहीं है, आपका मैसेज चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, ठीक है. So on the basis of purpose, I discussed with you that there are so many types of business letters, but on the basis of structure, there are 4 formats that we need to follow, okay. So on the basis of structure, there are 4 formats that we need to follow. We need to follow, but in cases like in those cases, अगर एक फॉर्मेट कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू फॉलो द सेम फॉर्मेट, ठीक है. डिपेंड करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई अगर फॉर्मेट वो यूज कर रहे हैं, सो यू नीड टू फॉलो द सेम फॉर्मेट, ठीक है. सो देयर आर 4 फॉर्मेट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड they are full block, modified block. मैम अगर ये अपना बिजनेस लेटर बेशक छोटा हो, इसमें ये नहीं होता कि कितनी लेंथ होती है. नहीं, इसमें लेंथ को नहीं देखते, इसमें मैसेज को देखते हैं कि आपका मैसेज क्या है, आप डिलीवर कर रहे हैं इन फ्यू वर्ड्स. अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ इट इज एन ऑर्डर लेटर, ठीक है, तो ऑर्डर लेटर में इट्स लाइक उसका सिर्फ बॉडी का सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, और वो ये होता है कि आई वांट टू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट एंड यू गिव द code of the product, and sometimes even you do not write that I want to order this thing, you say order number and you write the code of the product, and that's it, okay, because they know their products के उनके codes कौन-कौन से हैं, and they will deliver the same thing to you, ठीक है. So it's not necessary कि आप कहानियाँ लिखिए. That's what I was telling you कि आपका फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, आपका मैसेज कहानी नहीं होनी चाहिए. योर मैसेज शुड बी एज कंक्रीट एज पॉसिबल, योर मैसेज शुड बी एज कॉन्साइज एज पॉसिबल, ठीक है. क्योंकि बिजनेस इंटरेक्शन में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, दे आर रनिंग आफ्टर थिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और हर वक्त मीटिंग्स चल रही होती है, तो बातें वो लोग इतना करते हैं कि वो आपके जो आपका रिटन कम्युनिकेशन है, they won't be having time to read that, चाहे जितना आपका अच्छा मैसेज हो, जितना ही persuasive है. So the persuasiveness that you can bring is only with following the best format, or following like as much conciseness you can bring. तो जितना concise होगा, they will see कि आप जितने professional है और आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है. So we have a full block, we have modified block, and we have semi block and semi modified block. ठीक है. So we have these formats, ठीक है, on the basis of their structure. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लाइक फुल ब्लॉक कैसे कहते हैं, मॉडिफाइड ब्लॉक, सेमी ब्लॉक एंड सेमी मॉडिफाइड, व्हाट आर दे, ठीक है. So what you need to like we need to discuss about the parts of letters first, ठीक है. कि जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे फिर उसके बाद we can see कि आपने उसको कैसे फॉर्मेट करना है. एंड द पार्ट्स ऑफ द लेटर्स आर
The first one is the heading. ठीक है, अब हेडिंग क्या है, या इसको हम लेटर हेड भी बोलते हैं, ठीक है. द हेडिंग इज बेसिकली द लेटर हेड, इसका हेड है, ठीक है. एंड इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ the sender, right? And we can also call it the return address, the name of the sender, the phone number of the sender, and the sometime the fax number, sometime an address of the organization or the company that he is working, or a house address as well. ठीक है, हाउस एड्रेस का मतलब ये है कि if you are writing any cover letter, right? So if you are enclosing a cover letter with your CV, so if they only read your cover letter that you drop with your CV या resume के साथ आप जब किसी भी organization पे drop कर लेते हैं, you want to have a job there, ठीक है. So what they are going to do is, अगर आप eligible है, if they go through your CV या फिर आपके cover letter से it's effective and you like just persuade them or convince them, तो वो आपको फिर call भी कर सकते हैं. आपका फोन नंबर जरूरी है, योर एड्रेस ऑफ द कंपनी जरूरी है, और एड्रेस ऑफ द हाउस भी जरूरी है, बिकॉज दे कैन send you a letter that you are selected for the particular job and we are having a test or a demo or an interview or things like that, ठीक है. और फिर उसमें टाइम भी बेचते हैं. So you and they can also जैसे मैं फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, and they sometimes can email you, ठीक है. So they can email you as well. The email address is also necessary, but आपका जो email address है, it should not be a personal email address. It should be a very related to an organization. जैसे आप लोगों के लिए UT ने ये email address बनाए हुए हैं, तो अगर आप ये वाला दे दें तो it's more effective, ठीक है. और फिर you must have a working cell phone as well, कि कोई अगर आपको फिर मैसेज या फिर कॉल कर लेते हैं तो you should attend that. I was talking about कि आपका हाउस एड्रेस इसलिए जरूरी है कि sometime we do not have a job. तो अगर आप किसी कंपनी में already you aren't working there, आपका हाउस तो है ना at least, so they can send a letter to you on the same address, ठीक है. So letter head is basically the sender address, या फिर हम इसको return address भी बोल सकते हैं. Return address that people will reply you or will give a response on the same or will return the same thing to you on the same address, ठीक है. So it's a return address. फिर इसके बाद we have a second one, that is the date, okay. Date क्या है? That is जैसे आप जिस टाइम को लिख रहे हैं, जिस डेट को लिख रहे हैं, जिस दिन को, ठीक है. तो we are having two formats that we need to follow, और आप कोई भी format follow कर सकते हैं while writing the date. The one is the British one and the other one is the American. तो आपका जो ब्रिटिश है उसमें आप क्या करते हैं कि that you write 6th of June 2020, ठीक है. और आपका जो जो अमेरिकन स्टाइल है, it is June 6, 2020, and normally we follow the American one, ठीक है. जब हम फॉलो करते हैं तो इस तरह, और फिर आप फुल अगर महीने का फुल नेम लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं. जैसे सितंबर के लिए हम SEP जस्ट लिखते हैं या PT लिखते हैं. So over here, like you can follow this one or this one, it's up to you. The other one is, the third one is the receiver address. Ma'am? Yes. Excuse me, ma'am? जी मैं सुन रही हूँ. Is there any difference between house address and return address? ये रिटर्न एड्रेस इस हेडिंग को बोलते हैं, ठीक है. मैंने आपको कहा कि like when we talk about the heading,
तो हेडिंग को हम रिटर्न एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दे कैन रिप्लाई यू और दे कैन गिव फीडबैक, ठीक है, ऑन द सेम एड्रेस। तो इसको लेटर हेड भी बोलते हैं, इसको हेडिंग भी बोलते हैं और इसको रिटर्न एड्रेस भी बोलते हैं। ये जो मैंने आपको कहा कि आइदर लाइक यू नीड टू इंक्लूड द नेम, your name, or you need to include the phone number, sometimes the fax number, the email address, or the address of the company that you are working in at that time, ठीक है, जो currently आप जिस company में या organization में काम कर रहे हैं या तो उसका address दे दिए, और if you like you aren't working in any company, so you need to go for the house address, ठीक है। अभी आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल बी मेकिंग यू टू सी द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, ठीक है। सो जो रिसीवर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस इज बेसिकली द एड्रेस जो आप जिसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है जो मैसेज को, जो लेटर को रिसीव कर रहा है, सो दैट इज द रिसीवर एड्रेस, या फिर हम इसको इनसाइड एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, इनसाइड एड्रेस। And in the inside address, what we include is sometimes the name of the person. If we know the name the person personally, so we can include the name of the person, but you can go for the title, mostly title of the person who is receiving the message, and then the address of the company he is working, ठीक है, और हाउस एड्रेस भी हो सकता है या कंपनी एड्रेस भी हो सकता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू राइट टू योर चेयरमैन और यू वांट टू राइट एन एप्लीकेशन टू हिम और हर, ठीक है, चेयरपर्सन हो तो आप क्या लिखेंगे, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूईटी पेशावर। सो दिस चेयरपर्सन और चेयरमैन इज बेसिकली द टाइटल ऑफ द पर्सन एंड एड्रेस इज डिपार्टमेंट ऑफ mechanical engineering UET Peshawar, so that becomes the inside address that you are sending a letter to, ठीक है। अब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ मिस्टर अली CEO डिपार्टमेंट ऑफ दिस और CEO ऑफ कंपनी ऑफ दिस, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप एड्रेस भी दे सकते हैं कि दिस कंपनी लाइज इन पेशावर और अदर सिटीज, ठीक है। You will see that how we write receiver address once I finish with the topic. Now, after that, we have a fourth one, and the fourth one is the salutation. Okay, salutation is basically when we address people. जैसे मैं नहीं कहती, मेरी बात सुने, तो इसको हम कहते हैं salutation, या फिर जब हम सलाम करते हैं and then after that we start with the proper conversation, ठीक है। So salutation is like it's the greeting. जैसे आप मिलते हैं लोगों के साथ तो पहले तो आप सलाम कर लेते हैं, फिर उसके बाद you start the conversation. So it's the greeting that or we start our conversation with. It can be dear sir, dear madam, Mr. Ali, Miss Saima, ठीक है। आप इसको कहते हैं dear Ali, dear Saima, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी respected sir, depends, ठीक है, और respected madam or respected people, you can write for it, respected this, like even you can write the name of the person as well, ठीक है। So over here there is a one rule that we need to follow. एक रूल है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में हमारे लोगों को ज्यादा इस चीज का वो नहीं है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कहते हैं कि when you write the name of the person, for example आप किसी को कहते हैं कि जैसे किसी का नाम है हमजा अली, ठीक है, तो अगर आप सैल्यूटेशन लिखते हैं so you need to go for the last name of the person, ठीक है, तो you will say dear Ali, not dear Hamza,
ठीक है, but it is like you can follow this one in Pakistan. People do not notice it that much, but in other or foreign countries you have to keep this in mind, and you have to like notice the last name of the person, and then you need to write the last name of the person by writing the salutation or the greeting, क्योंकि वो लोग बहुत मसले बनाते हैं, स्पेशली अमेरिकन पीपल. when you write sir for them, or when you ask them and you say sir, they can even mind that as well. They will say कि क्या हम आपको बूढ़े लगते हैं? So depending on the culture you are living, depending on the society, you have to see ke what type of language you can use or what type of conversation that you can use. ठीक है, तो वहां पे आपने देखना है, because culture change में कल्चर शॉक्स है कि बंदा अगर किसी बाहर के मुल्क में जाए तो वहां पे, या जाहिर बात है यहाँ पे हम बहुत सारे रिस्पेक्टेड सर और मैडम हर वक्त यूज करते हैं. वी कैन नॉट गो फॉर द फर्स्ट नेम और द सेकंड नेम ऑफ द पर्सन, क्योंकि कहेंगे इतना बदतमीज है. ठीक है, बट इन फॉरेन कंट्रीज यू कैन गो फॉर द लास्ट नेम ऑफ द पर्सन. आप डेयर भी कह सकते हैं. यहाँ पे आप किसी को डेयर कर ले तो कह दे तो एक थप्पड़ मार देंगे. ठीक है, सो यू हैव टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट एज वेल. ठीक है, सो सैल्यूटेशन इज दैट. अब उनका कभी कभी ये मसला होता है कि उनके नेम्स ऐसे होते हैं कि यू डू नॉट नो that whether the person is a male or a female. So what you need to do is to you can go like for the first name of the person. In that case, when you know that he or she, whether it is he or she, okay, so then you can go for the first name of the person. But keep this in mind that you have always you need to go for the last name of the person while writing a salutation. ठीक है, in foreign countries. लेकिन जब आपको पता नहीं होता कि ये नेम मेल का है या फीमेल का है, then you can go for the any then you have a justification. You can say that like I didn't know that whether it's a female or a male. ठीक है, and then after that we have the fifth one, and the fifth one is the body, which is the main content. ठीक है, body is basically the text. Okay, it is the content of the, okay, or it is the message of the letter. Okay, it is the message of the letter. When we write the letter, for what purpose we are writing the letter? For example, if you want to inform people about an innovation or a new idea, so what would be the body or the text or the context? तो आप उसी चीज के बारे में आप बात करेंगे. So body is mainly the context, the content or the message of the letter. ठीक है, and then we have a sixth one, that is the complementary clause. जाहिर बात है, when you want to close your conversation, when you want to finish your conversation, you will always be having some sweet words. ठीक है, so it's the short pleasant word that we end our conversation with. So complementary clause का क्या है? That body में हम conversation कर लेते हैं लोगों के साथ. ठीक है, जब हम बात करते हैं कि we need or we request this thing or it is stated that, और बहुत सारी कहानियां लिखते हैं. फिर उसके, या अगर कहानी ना भी हो, so अगर एक sentence भी है, even that as well, we close our conversation with some sweet or pleasant words. ठीक है, और short polite closing is that. ठीक है, so that is complementary. So complementary कैसा हो सकता है? With a comma. We end our conversation with a comma and we say yours obediently. अब ये obediently थोड़ा सा obsolete हो गया, outdated हो गया. बहुत सारे लोग obedient नहीं होते. और obedient जो है ये बड़ा टीचर और स्टूडेंट के दरमियान होता है. तो मुझे नहीं लगता टीचर्स को हर वक्त कोई लेटर भेजते हैं. तो obedient लोगों को अगर आप sincerely लिखें, faithfully लिखें, you can go for regards. Regards भी बहुत important है. Regards भी बड़ा वो है. It's regards, thank you. You can go for the thanking you. और बहुत सारे. ठीक है, thanking you.
So you see, this is complimentary clause. Yours obediently, faithfully, regards, thanking you, or sometime best wishes. जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें ऑलरेडी आप लोगों ने ये टेम्पलेट्स वहां पे लगाए होते हैं, ठीक है, ये थैंक यू और ये रिगार्ड्स और ये पहले से लगाए होते हैं, तो बस फिर आप जो भी ईमेल लिखते हैं आप सिर्फ उसमें बॉडी लिखते हैं एंड यू गिव द नेम ऑफ द रिसीवर और फिर आप वो सेंड कर देते हैं, ठीक है। सो ईमेल में कभी कभी ऐसी चीजें आसान हो जाती है कि वी ऑलरेडी हैव रिटन द नेम्स एंड वी हैव सेव्ड दोस नेम्स और फिर उसके बाद हम सिर्फ बॉडी लिखते हैं, ठीक है। सो कम्प्लीमेंट्री क्लोज इज बेसिकली द शॉर्ट एंड द पोलाइट क्लोजिंग विद अ कॉमा, ठीक है। Now the signature line, फिर उसके बाद जो the seventh one is basically the signature line, ठीक है, the signature line. Over here what we do is that we keep 3 spaces after the complementary clause and we put a signature in those 3 lines, ठीक है, and after that we write our name with a designation. What we do is that we write our names with designation, ठीक है। तो 1 मिनट सब्र कर ले, sorry for taking your time. ठीक है। सो विद द नेम एंड डिजिग्नेशन, जैसे आप कहते हैं ना कि आप कहते थैंक यू, फिर उसके बाद आप सिग्नेचर पुट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप और फिर क्वेश्चन है, ठीक है। तो designation स्ट्रिक्ट हो है, अब विदिन तो आप उसको पोस्ट कर लेते हैं, तो जो रिमार्क्स होते हैं या फिर भी कोई चीज हो बात हमें याद आ जाती है, so we cannot go and type it again or call that again, so हम handwritten भी use और ये क्या रोल है यार, भैंस की। क्या हुआ यार? मैम आ रही है यार ना? यार सोहेब भाई, आपने डीपी बड़ी अच्छी लगाई है। पता नहीं यार, आज तो आवाज भी बिल्कुल साफ नहीं आ रहा। हाँ मेरे साथ है सर आज। हाँ हाँ यार, आपने डीपी बड़ी अच्छी लगाई है सोहेब भाई। जानी हैदर भाई ने भी बड़ी जबरदस्त लगाई हुई है, इधर देखे ना वो आप। तो यार उसकी तो बात ही अलग है ना। हैदर भाई ने तो कमाल किया फिर।
ओए सैबिट किसी की मिली है डिफरेंशियल के अलावा? लाइट चली गई है मैम की, बस चलो क्लास खत्म। तुझे किसने बताया? सेमी खत्म। तुझे किसने बताया लाइट गई है? बस समझ जाना। जाहिर बात है, वो उस दिन सर उनकी भी चली गई, अहमदुल्ला की भी चली गई थी। यार बड़ी खामोशी है यार। मैं बिहार राजी का ना। ना 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 राजी राजी जानी अच्छी हाँ, तरह बिला गायब है लिया। यार। जानी की तरह गायब है यार, बिल्कुल पूछता भी नहीं है। बिलाले तू नसवार डाल के बैठा होगा अभी भी। संगे जरार हम आओ खैर दे। Pensaba que aún si la paz y su via claro. यार इस क्लास में सबसे ज्यादा नींद आती है, पता नहीं यार वो कोई क्यों शोर बीच मॉक में में तू बेदार होता है क्या? है। हाँ। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की क्लास में तू बेदार होता है क्या? ना उसमें फिर कुछ सामने लिखा होता है, इसमें तो बस मैम बोलती रहती है। इसमें भी बेचारा मैम इतनी मेहनत कर रही है यार, तू इधर क्या बात कर रहा है? वो देखो वो सारा टाइप करते हैं। तू नाशुक्र इंसान है, तू दफा। तू सीआर है तूने जाके ना दूसरों की अरे तुच्छ जरार ज्यादा जाके और ओए चलो सीआर तो करता हूँ यहाँ पे, जरार मेरे पास, तुझे बहुत जरार समझ मेरे आ पास तू सीआर, जरार तू सीआर है यार प्लीज। ले यार। ले मैं यार किधर भाई। सीआर हूँ भाई? हम किधर सीआर हैं? सीआर तो आप हैं। सबसे ज्यादा वोट तो आपने लिए थे। हम तो वही हम ही खड़े हो गए थे। हम तो अब शुक्र करते, शुक्र है नहीं बने। अरे बोल खुदा में प्यार ना बनाए। हाँ ना। ओए तू बन जाए सरारे, तुझे फुल देता हूँ, सारी सीआरशिप ले ले। बहुत शुक्रिया जरारे को बहुत अपनी मोहब्बत बना गया ऐसी यार। शुक्रिया। यार वो भी बस अजीब चीज है। तो बस सुबह आके सबके हालात पूछ रहा था। नहीं हाँ यार भाई अजीब आप। चीज सर यार। हाँ भाई सर को आप हमारी इतनी कैसी हैं? परवाह है, ठीक है। सर को हमारी इतनी परवाह है, सर की आंखों में आंसू आ रहे थे, सुना नहीं है? यार तू वो छोड़। चाय का एक एक घूंट पी रहा है। एक एक घूंट पी के हमें दिखा रहा था कि ये देखो मैं चाय पी रहा हूँ। यार कैसे खुदाई। अस्तगफुरुल्लाह, सर के बारे में इस तरह बात नहीं करते यार। मैं गलत बात थोड़ी की है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर चाय पी रहे थे तो मेरा भी चाय पीने का दिल हो गया ना। मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं अम्मी तो को उठा ही बोल नहीं हूँ। के बना, हैं? अम्मी को बोलता कि बना देती तुझे उस वक्त चाय। यार वो बस सुबह सुबह उठे थे ना, तो फिर पढ़ाई शढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद दोबारा जाके फिर कर लिया। मैं उठा ही 10 बजे हूँ, क्लास खत्म थी तब तक। अच्छा जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग है तेरे पास? नहीं यार, किसी ने रिकॉर्डिंग, यार हमारे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं आता है। किधर से करता है तू? यार ये आजकल ऑप्शन चला गया है, क्या पता क्या मसला है। ये पहला बंदा जो आता है उसके पास जाती है रिकॉर्डिंग, पहला बंदा जो क्लास में आता अच्छा अच्छा यार, जो भी आता है प्लीज कर लिया करो, ये सारे सुन लो भाई। ठीक है, जिसके पास आती है कर लिया करो। अच्छा और भाई सीन्स क्या है? ठीक है, फिर सब फिट जा रहा है। अच्छा है। मोमिन भाई क्या हो गया? खामोश हो गया। फैसला है यार, फैसला खामोश है। तो फैसल दोबारा किया है? कुवैत गया है? ना वो इधर ही सवाबी में घूम रहा होता है। पता नहीं, इसकी तो मैं स्ट्रीक्स देख रहा था उस दिन। कभी कभी ये उधर बैठा होता है, कभी इधर पहुंच जाता है। इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। ओए फैसले जिंदा है? हेलो। सोया ये हुआ हम है ये जैसे यार, ये टैब खोल क्या के चला सोया गया वो, कि। क्या पता सोया वो, उसका पता भी नहीं चलता। हाँ हाँ। ओए शोएब, एक ही दफा माइक ऑन कर लिया यार, तू क्या बार बार ऑन ऑफ कर रहा है? समझा करना। क्या समझा करूं? मोमिन भाई जी सुनाए, क्या हाल है? भाभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है ठीक है यार। चलो यार। बच्चों को मेरी तरफ से बच्चों को मेरी तरफ से मेरे प्यार से ख्याल में फिर भर झगड़ा हुआ है, इसका फिर हैं। झगड़ा हुआ है मेरे ख्याल में। बस ठीक है, लग रहा है छक्का करके आया है। हाँ हाँ, आवाज से पता चल रहा है भाभी ने डंडा दिया है इसको। ना ओए, पबजी खेलने का मूड है। यार पबजी के चलो, बस कर दो यार। पबजी मोबाइल नहीं खेलता मैं, पबजी पीसी खेलता हूँ। हम बड़े लोग हो यार। स्टेटस देखे तूने? देखे उस दिन 15 किल्स ली थी, तुझे ये पता वो चला? बच्चों वाली खेलते हैं, वो पबजी लाइट क्या है?
हाँ पबजी लाइट, पबजी पीसी 500 स्टीम MB वाली, जी, वो लोग अच्छा जी, तुमको फिर अलग पता जाए। सही है जी, बिल्कुल आप खेलें। छोड़, मैं गेम लगा रहा हूँ, मैं पता लग जाएगा। ओ भाई कुछ बोल लो, बाकी क्या सारे बस बच्चों इंटरेक्शन के यार आपस में आप लोग, पबजी। ये सारे कोई कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। और जरा रे ये मैम किधर है? फैसल किधर से, तू किधर गायब था? यार मैं सोया हुआ था ये बस कंफर्म, बस अभी भी सोए पे तो। देख ले। The English 67 slide dilawo mazikar pure khatam. हमारा छोटू Okay. चता 67 गायब, slide दियो the English. चता गायब है जालिम। हमारे साथ भी क्या है पबजी? जाने स्लाइड चेक कर, स्लाइड चेक कर। ओए ओए, ये मैं जो पढ़ पढ़ के बंदा थक गया कि मैम क्या करती रही है। ओए बस बेटा फिर से बोलो। तेरे जालिम के बच्चे, कौन पढ़ेगा? ओए बच्चे, इसमें से पेपर Madam अलग jara rote ओए ओए असाइनमेंट मोमेंट बनाई। मोमेंट हाँ, यार और अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना, फैसल तू भी चेंज कर। अच्छा तू बेच क्या लगाऊं? भेज क्या, ये तू गूगल पे सर्च कर लद्दन जाफरी, इसकी लगा ले जो शोएब ने लगाई है और मैंने लगाई है। इसकी लगाऊं? लद्दन जाफरी है वे। ना वे मोमिन, तू नासिर खान जान के लगा, तेरे साथ शूट करती है। चल वो लगा। तू ही लगा। हाय गाइस, ये किसने बताया वो, हाय गाइस वाला? ये आवाज आ गई है नसर खान जान की शेबे की। तेरी नकल कर रहा हूँ मैं तो। आवाज तो निकाल। ऐसे तो नहीं होता। मैं बात करने जा रहा हूँ इस देश की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। बात अगर संगीत की जाए तो इस देश में हर 3 घर छोड़ के एक रैपर पैदा होता है। बस जरा माइक बंद कर दे यार, 2 सेकंड सुकून है, देखने दे मुझे। क्यों सुकून का क्या करना है भाई, तुम घर में बैठ बैठ के सुकून तुम्हें मिला नहीं। बस बंद कर माइक। और जरा रे किधर यूनिवर्सिटी घूम रहा है? क्या यार, काम से गया था जरा। वाह यार। फैसले बंदा फर्स्ट डे अफगान के पास गया था। हाँ वे उसके पास गया। अरे और काम क्या है? ए उसामा के पास कब जाना है सोएबे? जानी आज बेबू को बोला है, कजन जा रहे हैं सैटरडे को, कहते हैं कोई जरूरत नहीं है कोरोना में। साजिश है यार, साजिश है, कल मैंने तुझे बताया ना। यहाँ पे ईद पे जिससे ना मिलो ना, वो बंदा खफा हो जाता। कहते हैं कोरोना मोरोना सब लगा, ये अमेरिकानो अमेरिकी वाला साजिश। कहते हैं जो बंदा बीमार होता है उसको 8 लाख रुपए मिलते हैं। मैंने कहा है हम भी होते हैं, जो ये कौन सी बीमारी है? ओए ओए मैं अल्फाज सही बीमार हूँ, इस्तेमाल मुझे करो भी यार। तो भी। शोएब क्या कर रहा है यार, मुंह को जरा अपने कंट्रोल दे, किस तरह की गंदी गंदी अल्फाज बोल रहे हैं बीच में। सॉरी। हमें पता है यार, तेरे तेरे जुबान में थोड़ा सा है, लेकिन कंट्रोल कर यार, इधर हमारे साथ ना जानी घर में जब से बैठ काफी कंट्रोल हो गया। बच्चे भी हैं हमारे साथ यार। हेलो फैसल, हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। फैसल यार हाँ। नहीं बन रहा, जा रहा है तू उसामा के पास? पता नहीं यार, मैं वैसे जाऊंगा तो सही संडे को, लेकिन उसके बाद पता नहीं, इस्लामाबाद जाऊंगा। असल में मैं भी तो आखिरी कौन है ना यार। अभी तक प्यासी, मेरी नजरें अभी तक प्यासी। अरे मैंने जी भर के देखा
जरा रे जी जी। आज सर जो बोल रहे थे, कहते ये कैप वाली जिसकी तस्वीर है ये क्यों नहीं बोल रहा? हाँ कहता अपनी शक्ल दिखाओ। तू था उसने यार बीच में कहा मुझे, कहते जब मैंने अटेंडेंस का पूछा ना, मुझे कहता यार जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ, मैं देखूं कौन सा है। जरा तू जाएगा उसामा के पास? यार मैंने मेरा थोड़ा सा है मसला, ठीक है। मैं पूरा बन गया था मेरा प्लान मैंने जाने का, लेकिन गांव में उधर फौतगी हो गई तो मैं उसमें फिर बिजी हो गया, ठीक है। और अभी जाने का वो है, लेकिन कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जाऊंगा। यार ये 2020 तो इतना गंदा साल है कसम से। कसम से यार, बड़े अजीब अजीब दोस्त मिल रहे हैं जिनको बताते हैं कि भाई प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लो तो वो भी नहीं चेंज कर रहे। अजीब दोस्त हैं कसम से। ये फैसले ने भी नहीं की। हाँ पता नहीं क्या है। ऐसे दोस्तों का हम क्या करें, ये बीच में एक दो और भी हैं हमारे साथ, इफ यू नो व्हाट आई मीन सोएब भाई। या आई अंडरस्टैंड। उनसे अलग हिसाब लेंगे कोई नहीं। बस जानी मतलब की दुनिया है। जो बात है यार, सब ने एक दिन जाना है इस दुनिया से। मोमेंट की तस्वीर तो देख, हंसी आ रही है मोमेंट को देख के। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब हेलो, ये कब हो गया था? सॉरी मैम। एग्जैक्ट है पता नहीं। मसला था, आप लोगों ने सुन लिया जो मैं लिख रही थी? मैम वो शुरू Yes, वाले ma'am, सारे last सुन के तो बकाया। यस मैम। सिग्नेचर। अच्छा चले मैं आपको दिखाती हूँ ये जरा। आपको ये नजर आ रहे हैं शुरू में कौन कौन सा कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, मुझे बताएं। मैम थैंक यू और बेस्ट विशेस तक कर लिया था। अच्छा अच्छा चले ठीक है, मैं इतनी कहानी कर रही थी और आप लोगों ने सुना ही नहीं है। चले ठीक है। सो इसके बाद वी हैव अ सिग्नेचर लाइन, और सिग्नेचर लाइन जो है we keep 3 spaces after the complementary clause and then we put our signature and after that we write our own name and designation। तो आप जो नेम होगा वो क्या होगा, that will be जैसे आपका अपना नेम and then student of second semester mechanical department of mechanical or things like that। उसके बाद postscripts होते हैं, ठीक है। Postscripts is represented with P.S और जो भी आपका additional remarks होते हैं, जो भी आपका notes होते हैं, या if there is anything which was important to write in the body लेकिन आप भूल गए, right? You forgot to write that in the body, so you can write it in postscripts as well। So sometime you print, ठीक है, sometime you print it, ठीक है, समटाइम यू प्रिंट द लेटर, लेकिन फिर आप उसके बाद आपको याद आ जाता है, सो इफ यू कैन नॉट डू द सेम थिंग अगेन, ठीक है, तो फिर भी आप इसको सिर्फ हैंड रिटन से भी पोस्टस्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। बट इफ इट इज अ हैंड रिटन, पूरा हैंड रिटन है, सो यू कैन गो फॉर द नोट्स और पोस्टस्क्रिप्ट्स अगेन आप लिख सकते हैं उस चीज को। देन आई सेड के देयर आर 2 पंक्चुएशन फॉर्मेट्स दैट वी हैव टू फॉलो फॉर अ लेटर। आप लोगों ने नोट किया होगा, वी पुट अ कॉमा, पीरियड या फिर हम कॉलन यूज करते हैं। तो मोस्टली दीज 3 पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन लेटर्स, ठीक है। और भी बहुत होंगे लेकिन जो हम नॉर्मली देखते हैं दे आर द कॉलन, द कॉमा एंड वी कैन से द पीरियड या फुल स्टॉप जिसको हम बोलते हैं। फुल स्टॉप हम तब बोलते हैं when we put it at the end of the sentence, or when it comes with at the end of the sentence we call it full stop। लेकिन अगर वो किसी word के दरमियान it is there to separate the letters of a word or an abbreviation, it is called as a period। जैसे हमारे पास USA में है, so whenever we use abbreviations which are not pronounced, we normally keep periods in between the letter to separate them। जैसे हमारे पास USA है, तो USA को the best way to write USA is to put periods in between the letters to separate them।
अब अगर एक एब्रीवेशन ऐसा है जो हमारे पास उसमें उसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, सो वी कैन नॉट पुट वी नीड नॉट टू पुट एनी पीरियड इन बिटवीन द लेटर्स टू सेपरेट देम, जैसे हमारे पास नासा है, ठीक है। अब एमफिल है, सो फिल हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, एम इज अ सेपरेट वन, सो वी पुट अ पीरियड। इसी तरह अगर हमारे पास पीरियड्स हम लगाते हैं तो हम उसको कैसे, उसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, अगर हम बिल्कुल ही नहीं लगाते तो उसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, राइट। सो वी हैव एन ओपन punctuation format and a standard punctuation format. The open punctuation format is basically when we do not follow any punctuation mark or put any punctuation mark in any letter, ठीक है। जब आप लेटर लिखते हैं आप उसमें कोई भी punctuation mark नहीं लगते, but the thing के when you do not write any punctuation mark in the start, go for the same format till the end of your letter. ऐसा ना हो कि ऊपर आप एक आप जो सेंटर एड्रेस है उसमें ना पीरियड लगाए ना उसमें कॉमा हो और फिर आगे कॉमास और पीरियड से भरा पड़ा हो, ठीक है। सो दैट्स नॉट द गुड फॉर्मेट एंड इट डजंट गिव अ गुड इमेज अबाउट द राइटर, ठीक है। अब अगर आप एक दूसरा है स्टैंडर्ड पंक्चुएशन फॉर्मेट, उसमें यू फॉलो द फॉर्मेट जो जिसमें आप सारे पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करते हैं। व्हेन अ पीरियड इज नीडेड यू हैव टू पुट अ पीरियड, व्हेन अ कॉमा इज नीडेड यू हैव टू पुट अ कॉमा, व्हेन अ कॉलन इज नीडेड यू हैव टू पुट दैट। अब हमारे पास दो ऑप्शनल पार्ट्स है लेटर्स के, जैसे अटेंशन लाइन है और सब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। तो अटेंशन लाइन इज दीज आर द ऑप्शनल पार्ट्स, यू कैन पुट देम और यू कैन नॉट, और इट डिपेंड्स, और डिपेंड्स करते हैं कि आप अगर रिक्वायरमेंट है तो यू कैन। जैसे अब कभी कभी लाइक समटाइम फॉर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी राइट लेटर्स तो वी वांट टू राइट इट फॉर जस्ट अ सिंगल पर्सन, या किसी एक इम्पोर्टेंट बंदे के लिए या एक पर्टिकुलर बंदे के लिए लिखते हैं, या फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लिखते हैं इन वन ऑर्गेनाइजेशन। सो जब अटेंशन, उसमें फिर आपने अटेंशन लाइन ऐड करनी है, दैट यू वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज द सीईओ ऑफ अ कंपनी, एंड इवन यू कैन राइट इन द अटेंशन लाइन, लेकिन अटेंशन लाइन आपने इस तरीके से वो करना है कि ATTN बट कैपिटल होना चाहिए विद अ कॉलन, एंड देन जैसे जिसको लिख रहे हैं, जिसका अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, यू नीड टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन। अगर कोई डिपार्टमेंट है तो फिर यू कैन राइट द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। Now the subject line is basically for which purpose you are writing the letter. Subject line वो होता है, वो purpose का name होता है subject line, and the body is the purpose that you write in words. ठीक है। So sometime the subject line is in phrase form, sometime it is clause, ठीक है। And if you want to order a product तो फिर उसमें order number आप लिखते हैं। आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, ma'am. When it is an order letter, so you always write the order name because they know the codes of their products, ठीक है। So सिर्फ आप order number लिखते हैं और उसके आगे आप code लिखते हैं, right? So you can have this code. अब ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, it's not the code of anything, but you can have this code or other code depending on the product जिसका जो code होता है, ठीक है। अब मैंने I was explaining this thing कि sometime when the subject line is a phrase or a clause, it is just like the topic or the heading of something. And you might have seen when people are asked to present something, they the first thing that is noticed about them is that how they write the topic for that discussion. तो जब भी आप किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए या फिर किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आते हैं एंड यू राइट समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, अगर वो प्रिंटेड है किसी चीज पे तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्रिंटेड नहीं है एंड यू आर आस्क्ड टू राइट द टॉपिक, you have to follow a rule for that. It is not only limited for the subject line, लेकिन आप किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले ये सोच ले और किसी भी हेडिंग को लिखने से पहले कि we have, like if it is a phrase or a clause, so what you need to do, okay, you have to keep open class words and closed class words in mind. As I have written a subject line for you and I said कि जैसे हमारे पास अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं and you subject line आप ऐसे लिखते हैं कि applying for the post of assistant engineer. So आप देखिए I have capitalized A, then capitalized P, और ये भी capital है और E भी capital है, ठीक है, और बाकी ये कैपिटल नहीं है, ये भी कैपिटल नहीं है और ये भी कैपिटल नहीं है.
So what I was saying that you have to keep open class words and closed class words in your mind. अब open class words और closed class words क्या है? These are basically the categories in word classes. और word classes को simply हम parts of speech भी बोलते हैं. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से? उसमें हमारे पास वी हैव नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड वर्ब्स, और ठीक है ये सारे हैं. ठीक है, तो जो ओपन क्लास वर्ड्स हैं हमारे पास वो क्लासेस है जिसको हम कहते हैं कि दे आर ओपन फॉर एडिशन. यू कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ दोज वर्ड्स बाय एडिंग some suffixes or prefixes, or you can change the meaning of those words by adding suffixes or prefixes, or you can change the forms. ठीक है, by adding suffixes and prefixes, or change the shape. ठीक है, जैसे हमारे पास है begin. begin अब क्या है? You can make began और begun. ठीक है, now these are the forms of the verbs. तो हमारे पास open class words कौन से हैं? अब एक है kind. You can change the meaning of the word by making it unkind. ठीक है, so by putting a prefix you can just change the meaning of the word. ठीक है, अब हमारे पास है beautiful. ठीक है, तो आप इसको beautifully भी कर सकते हैं. So you see beautiful, beautifully, it is an adjective and it is an adverb. So when you change, you can change the grammatical category of a single word. Now it is like you have changed it to adverb by putting ly, और यहाँ पे आपने इसका meaning change किया. So when you can change the forms, when you change the grammatical category of the words, and when you can change the meanings of the words, that is basically the open class words. तो हमारे पास open class words कौन से हैं? We have nouns, pronouns. Pronouns तो नहीं हो सकते, pronouns में कभी कभी हो सकता है. Nouns, adjective, adverbs, हेलो मेरा भी आवाज नहीं आ रही. मैम आवाज नहीं आ रही. फिर वही मसला हो गया मेरे ख्याल में. आवाज नहीं आ रही. मुझे अंडे वाला बर्गर. फैसल भाई नॉट कमिंग स्लो, बड़ी आला डीपी लगाइए भाई. ومن صرت تكستك وطيج وزن زيارة جوتين مستزايش ذيك اوكو ينزجر كتير. اوكي मतलब वो मैं बुलंदान क्लास से और 30 मिनट क्लास का एग्जाम्स का नोटिस पड़ा है ग्रुप में जो मैंने सेंड किया है? जरा रे पढ़ा है मजे कर, अब एग्जाम्स दे.
भाई हम तबाह हैं। क्या कहिए, रात को इतना खुश हो गया था। जालिम ने IGC की वेबसाइट हैक की थी, क्या पता कौन से हैकर से। और कह सकते हैं भाई। हेलो। यस मैम, भी आवाज आ रही है। हाँ मोमिन, वो असल में क्या कहते हैं उसको कि मैं मैसेज जल्दी नहीं पढ़ सकती, तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को उसकी समझ आई है तो मुझे बताएं, फिर हम एक काम करते हैं। अगर अभी ये नेट का इस तरह इशू है तो मैं बार बार नहीं कह सकती, मेरा क्या कहते हैं उसको कि थक जाती हूँ। तो इससे अच्छा है वी कैन हैव दिस क्लास ऑन सम अदर डे और सम अदर टाइम। वी विल हैव, आई विल सेव द बोर्ड, ठीक है? ओके मैम। और बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर ले, देन वी कैन लीव द क्लास। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो हाँ कल ले लेते हैं मैम। जी मैम, मसला है मैम हमें तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ कनेक्शन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज भी क्लियर नहीं आ रही आपकी। वो मेरा इंटरनेट का शायद मसला है। यस मैम। हाँ तो मैम कल ले लेते हैं अगर। कल नहीं यार। क्या? तो फिर कब? मैम अभी खत्म करें बस, थोड़ा सा वैसे टाइम रह गया। ठीक है, सही है। तो फिर आप मुझे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, आई एम शेयरिंग अ टैब, तो उसमें फिर आपने मैं कहाँ से कर रही थी जो आप लोगों को फिर आवाज नहीं आ रही थी? व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। हाँ, ऑप्शनल पार्ट्स जो है उसमें अटेंशन लाइन आप मुझे साथ साथ बोला करें, साथ साथ बोला करें जब भी कनेक्शन खत्म होती हो, ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ में अब अटेंशन लाइन है और सब्जेक्ट लाइन है। अटेंशन उसके लिए है जो हम, इफ यू वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, सो वी हैव टू राइट द अटेंशन लाइन। जैसे मैं इफ आई वांट टू राइट दिस लेटर फॉर मिस्टर विल्सन, सो आई एम इन अटेंशन लाइन आई विल राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु इज द CEO, ठीक है? अब I was discussing कि when we have subject line, it can be a phrase or it can be a clause, ठीक है? ऑर्डर में मैंने डिस्कस किया था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर लेटर है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ कोड भी हम लगाएं तो भी पूरा है, ठीक है? जैसे इफ यू वांट टू ऑर्डर अ प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट का ऑर्डर नंबर लिखें, फिर भी आप उनको पता चलेगा कि व्हाट यू वांट टू ऑर्डर, ठीक है? आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है, तो अगर but there is another rule that if the subject line is a phrase or a clause, then we have to keep this in mind that sometimes we have open class words and we have closed class words, ठीक है? उसको हम word classes भी बोलते हैं या फिर simply these are the parts of speech। जैसे हमारे पास nouns है, pronouns है, verbs है, adjectives है, adverbs है and all that, ठीक है? So all of them are called word classes or word categories, ठीक है? तो उसमें फिर जो open word category है या closed class words जो है या open class words जो है, you have to keep this in mind that how to put them, and it is not only limited for the subject line, it can be applied to any heading that you write for a particular stuff that जो आप लिख रहे हैं, ठीक है? It can be you can apply it to any topic that you write on the whiteboard। जैसे भी आप कोई आपको कहें कि present this topic and you come and you present in front of the audience, so what the first thing that is noticed about you is how you write the topic, ठीक है? तो वो टॉपिक जब भी आप लिखते हैं you have to capitalize
the first letter of the closed class open class words, ठीक है। जैसे आप इसको नोट करें, I have written applying, A is capital for the post, तो ये for भी capital नहीं है, D भी capital नहीं है, but post में P capital है, assistant में A capital है, and E is a capital in engineer, you see। तो आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, सही है। सो इसमें यू हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ओपन क्लास वर्ड, अगर जो भी टॉपिक हो। नाउ दिस इज आई एम डिस्कसिंग अ सब्जेक्ट लाइन, बट it is not only limited for the subject line when it is a phrase or a clause. It can be like you need to apply it to the topics that you write on the whiteboard while demonstrating a topic or while presenting a topic, ठीक है, because that gives a good image about you, that you know कि आपने कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक फ्रेज हो, जैसे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, तो इन द सब्जेक्ट लाइन अगर ये फ्रेज मेरे पास है, सो आई विल बी कैपिटलाइजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द open class words, even if it is in the middle of the sentence, ठीक है। लेकिन क्लोज क्लास, आई हैव टू कीप द क्लोज क्लास वर्ड इन लोअर केसेस, जैसे फॉर और दी जो है, दी इज आर्टिकल, फॉर prepositions है। अब हमारे पास ओपन क्लास वर्ड्स कौन से है? वो हमारे पास एडजेक्टिव्स है, नाउन्स है, एडवर्ब्स है और वर्ब्स है। क्यों? दे आर ऑलवेज ओपन फॉर एडिशन। और वो एडिशन कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे पास बिगिन है, बिगन है, बिगैन है, काइंड को हम अनकाइंड बना सकते हैं, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली बना सकते हैं, राइट। सो व्हेन वी चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स, or when we can change the meaning of the words, or when we can change the form of the words, they are basically open for addition, right? So we add suffixes or prefixes with these words to make change the grammatical category, to make another word, or to change the meaning, or to change another form, ठीक है, or to change the form of the we can say that word. So when we can change these things, they are always called as open class words, while closed class words are articles, prepositions, जैसे हमारे पास to है, from है, toward है, into है, and है, but है, and all them, ठीक है। इनको तो हम they are already closed, we cannot add something with but। अब but ली हम यूज नहीं कर सकते, and ली नहीं यूज कर सकते, ठीक है, अन इनटू नहीं यूज कर सकते, so they are closed class words. So one thing or the rule is that while writing a subject line, you have to capitalize the first letter of the open class words while keeping the lower the closed class words in lower cases, ठीक है। So that was the rule I wanted to discuss. And then after that, you see, we have I was discussing block, full block, semi block, ठीक है। तो block format क्या है? Now I discussed all the parts, ठीक है। तो block format में we keep all the parts of the letters, जितने भी parts of the letters हैं, we keep them towards the left margin. और left margin page का क्या है? Left margin is this margin. Okay, so we keep all the parts of the letters toward the left margin of the paper, or while we are typing in a computer, okay? So they are block form. Now the modified block is basically, there is a modification, there is a change, and the change is for the three parts, sometimes the two parts, ठीक है। Three parts कौन से हैं? जैसे I discussed in the start of the lecture कि हमारे पास जो parts में, the first one is the letter head, फिर उसके बाद date है, फिर तो हमारे पास जो letter head है, और sometimes the date as well, कभी date हम इधर लगाते हैं modified में, कभी इधर लगाते हैं। So in the modified we have three parts or two parts in which the letter head, the date, and the complementary clause, we keep them somewhat in the middle, or right towards the right margin, or right in the middle, or somewhat towards the right margin, ठीक है। या हम इधर letter head लगाते हैं, फिर date लगाते हैं, और उसी arrangement में फिर complementary clause भी इधर लगाते हैं, और बाकी सारे parts हम we keep them towards the left margin, ठीक है। तो वो modification है हमारे पास। Now semi modified क्या है?
I'm going to show it to you in the document that I have shared with you. ठीक है? Semi block में क्या है? Semi block is basically that type of letter in there is indentation. Okay, so what is indentation? They are the 4 or 5 spaces that we keep while writing or while starting with the okay, so that we keep या फिर 1.5 inch on the paper. अगर पेपर है तो उस पे 1.5 inch हम रखते, अगर कंप्यूटर है तो 4 or 5 spaces हम when we start the body or it is in the body. Okay, the body of the letter में when we write the body of the letter we keep indentations or 4 or 5 spaces while starting the first sentence of the first paragraph. ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की बॉडी की शक्ल आती है. जैसे अगर आप लोग के पास I want to draw it, ठीक है, ठीक है. For example, if there is a like the body of the letter, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जैसे मैं लिखती हूँ dear sir, sorry for this, but लेकिन अब मैंने लिखना है ऐसे ही क्योंकि I cannot just type and draw at one time. ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ dear sir, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन अगर वो फुल ब्लॉक है तो फिर we start the sentence right from there. ठीक है, it is stated that. लेकिन अगर वो semi block है तो we will write dear sir और फिर we will or 5 spaces and then we will start from here. It is stated or most respectfully or something like that. Okay, and then the second sentence will have the same position as we write the salutation. Then the third sentence as well, depending on the message that you write. And if in the fourth sentence you just end the first message that you write, अगर फिर आप उसके बाद you have another thing to explain, so you will be writing a second paragraph. So the first sentence of the second paragraph will have this position. Now again it will have the second जो आपका होगा, आपका third sentence of the second paragraph, आपका fourth sentence of the second paragraph. Again if you have a third paragraph, so the first line will start from here. अब I'm not good at drawing, लेकिन थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि like we keep 4 or 5 spaces while writing the first sentence of the first paragraph, the first sentence of the second paragraph, and the first sentence of the third paragraph, and so on, depending on the paragraphs you include in a letter. ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज है, इसको तो हम लिख सकते हैं when अगर पेपर के ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है, when we put our ink to paper तो हम इस तरह एक शेप बना सकते हैं. लेकिन अगर ये हम कंप्यूटर में लिख ले तो फिर कंप्यूटर में हमारे पास ऑप्शंस है. जब आप वो पेज में क्लिक करेंगे यहाँ पे वो सारा MS ऑफिस में वो सारा कुछ इधर ही आ जाता है. ठीक है, सो वो क्या होता है कि when you click some options, so वो एक ही अरेंजमेंट में आ जाते हैं. सो ये जो सेंटेंसेस में यहाँ से शुरू कर लेते हैं वो कभी कभी बिल्कुल सब इधर आ जाते हैं. सो दैट्स राइट, दैट्स ओके, ठीक है, बट देन यू हैव टू कीप 4 or 5 स्पेसेस फॉर एवरी सेंटेंस. ठीक है, लेकिन अगर आप पेज पे लिख रहे हैं सो देन यू नीड टू कीप 4 or 5 स्पेसेस फॉर द फर्स्ट सेंटेंसेस ऑफ एवरी पैराग्राफ, keeping the rest of the sentences from the same arrangement as you write the salutation and the rest of the body. ठीक है, तो ये हमारे पास सेमी ब्लॉक है.
सेमी में हमारे पास 3 पार्ट्स राइट इन द मिडल होते हैं या somewhat towards the right margin होते हैं, और सेमी में we have body indentation. So when we have semi modified vlog, then we will have both the characteristic in that particular letter. लेकिन डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो कभी कभी जो है अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू शेयर द टैब, the same tab that I have shared with you already, जो डॉक्यूमेंट है। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? ठीक है। नेट का इशू अभी है इस टाइम, पता नहीं नेट को क्या हो जाता है। ये देखिए इतना टाइम ले रहा है, तो ये इस टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। To show it to you कैसे लिख सकते हैं documents that I discussed with you on the whiteboard, उसके हमारे पास examples हैं जो material किया हुआ था, अपलोड हुआ था, उसमें मैं आपको ये नेक्स्ट काम तो दिखा दूंगी क्या है। सॉरी लेकिन आप क्या कर सकते हैं। Ma'am, your voice keeps on buffering. हाँ ये बात है ना कि नेट थोड़ा सा इशू है, सॉरी फॉर दिस, लेकिन आप क्या कह सकते हैं। मैं समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हो, पता नहीं। बस मैम अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मजबूरन फिर बाद में कर लेंगे, आपको जिस तरह बेहतर लगता है। ये जो मटेरियल्स में इसे मैंने आपको कहा, तो आप लोगों ने कहा नहीं मैम की यार क्या सीन है यार छोड़ो ना, जरार एक क्या है, छोड़ो बस यार, फिर कल ले लेंगे यार, परसों कल ले लेंगे, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है, वो फिर बार बार ही ठीक होता रहेगा। स्टार्ट सही है, यही मसला हो रहा है। एक 5G लगाया हुआ है ये तो आप यार फैसल भाई आपने कहा था यार दोबारा या अभी कर लेते हैं, ये देख लो ये तुम्हारी वजह से क्या क्या हो रहा है, अजीब बात, पता नहीं क्या चीज हो यार तुम फैसल यार। भाई मुझे लगता था बस 20 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, तो खत्म ही नहीं हो रही बात यार। फैसल भाई सारा तुम्हारी वजह से है बस। मैम फिर डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा सही, मेरी वजह से। तू सो रहा है? सारा तुम्हारा किस्सा है। क्या तुम स्टोरियां लगा रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम पढ़ो। मैम डिस्कनेक्ट हो गई है या मैम खत्म हो गया लेक्चर? यार मैम को तू बता दे, मोमिन मैसेज कर दे, मैम से कह दे कि बस फिर कल कर लेंगे। बोल आज रात को ले लें 11 बजे क्लास। ओ भाई उस टाइम सबकी नींद पूरी होती है ना यार। तू काम करना मोमिन, ये तो है वैसे, नींद मैम को मैसेज कर दे। बोल मोमिन बोल, अगर मैम थोड़ी सी क्लास है तो रात को ले लेना। हाँ उनसे कह देंगे फिर बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी मसला बहुत है। वाह जानी तो मैम रिकॉर्डिंग सेंड कर रही है, इंस्टा यूज कर रहा था यार। रिप्लाई आ रहा है मैम का, तू देख लेना, मैम से कह दे वो रिकॉर्डिंग सेव कर लें और रिकॉर्डिंग भेज दें बकाया जो है। ये भाई कोविड-19 पेंडेमिक
फैसले तेरी तरफ है कोरोना बॉबी में? ना हमारा इधर कुछ नहीं है। अपने पीएमएल एंड एहसन इकबाल टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। लो भाई एहसन इकबाल को निकला है। सुनो सब, यस मैम कह रही है बाद में क्लास अरेंज कर दो, और अभी बहुत मसला हो रहा है मैम को, तो इसलिए काइंडली कल इंशाल्लाह हम क्लास ले लेंगे। ओके ठीक है, बस हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ ये रिकॉर्डिंग ये सेव हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो चीजें मैंने पढ़ानी हो वो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है? तो मैंने उसमें बहुत कम रह गया है। आई वांटेड टू शो इट टू यू कि जो मैंने चीजें डिस्कस की हैं तो उसके एग्जांपल्स है। तो अभी मैं कोशिश कर लेती हूँ, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बस फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है? आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके मैम। लेकिन पहले थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं कि वो आ रही हैं कि नहीं। वो जो मैंने स्लाइड्स आप लोग के साथ शेयर किए थे, अगर वो अपलोड हो रहे हैं तो ठीक है। ये देखिए अभी अपलोड हो गए हैं। अभी आप लोग को ये नजर आ रहे हैं? एम आई शेयरिंग दिस वन? ठीक है, मैं आप यहाँ से, ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखे, ये अभी आपको नजर आ रहे बिजनेस लेटर्स? यस मैम। ठीक है, इसमें जो जी जो बाकी सारी चीजें मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की थी कि लेटर हेड क्या है, तो इसमें बहुत डिटेल के साथ दिया हुआ है कि लेटर हेड कैसे लिखते हैं, और ये देखें ना स्टैंडर्ड एलिमेंट्स जैसे डेट कैसे लिखते हैं, और सब कुछ इधर है। आप लोग अगर आपको डिटेल चाहिए तो यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर, ठीक है? लेकिन इसमें जो मैंने आई डिस्कस द लेआउट्स, ठीक है, और जो मैंने आप लोग के साथ फॉर्मेट्स डिस्कस किए वो यहाँ पे आई वांट टू शो इट टू यू, ठीक है? तो यही चीज रह गई थी, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि खत्म हो जाए, ठीक है? नाउ इंक्लोजर के बाद कॉपी नोटेशंस और ये सब कुछ देख के, ये भी पोस्टस्क्रिप्ट्स है और ये सब। अब ये लेआउट इज बेसिकली द फॉर्मेट, ठीक है? कि आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉक लेआउट, मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट, सेमी ब्लॉक और सिंप्लीफाइड, ठीक है? तो ये देखिए ब्लॉक लेआउट कैसा होगा। अब ये दिस इज द एग्जांपल फॉर द ब्लॉक लेआउट कि दिस इज द सेंडर एड्रेस, ये अब इसको हम हेडिंग भी बोलते हैं, द डेट, इसमें 1 लाइन स्पेस छोड़ के देन डेट, और फिर ये रिसीवर या इनसाइड एड्रेस है, दिस इज द सैल्यूटेशन, दिस इज द बॉडी, और but you need not to write all these names because these are just the names, ठीक है? While you are writing an application or a letter, then you need not to write these names because these are just the names, ठीक है? Except subject and attention line. मुझे सुन रहे हैं? आप लोग को नजर आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो ये ब्लॉक लेआउट है। अब मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट जो मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास जो सेंडर एड्रेस है इट इज समवट इन द मिडल और राइट, या फिर राइट इन द मिडल और समवट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन होता है, ठीक है? तो ये अब राइट मार्जिन में डेट इधर है, और ये रिसीवर एड्रेस है, ये सैल्यूटेशन है, ये बॉडी है, और ये फिर हमारे पास कम्प्लीमेंट्री क्लोज इन द सेम अरेंजमेंट एज यू राइट द लेटर हेडिंग, ठीक है? तो ये हमारे पास मॉडिफाइड हो गया। अब सेमी ब्लॉक कैसा है कि सेमी ब्लॉक में, अब ये देखिए ना बॉडी में, ठीक है? बॉडी में लाइक यू कीप 4 or 5 स्पेसेस इन द कंप्यूटर, राइट, टू स्टार्ट। अब यहाँ से देखिए दिस इज नॉट द सेम अरेंजमेंट यू राइट द सैल्यूटेशन और द रिसीवर एड्रेस, दिस इज द like you keep 4 or 5 spaces in the computer or 1.5 inch on a paper, ठीक है? तो जब आप कोई पेपर पे लिख रहे हैं तो यू कीप इंडेंटेशन, तो ये जो इंडेंटेशन हमारे पास बॉडी में आई है दिस इज बेसिकली सेमी ब्लॉक, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बट यही सब कुछ था जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती थी कि ये हमारे पास है, ठीक है? तो इस तरह के एग्जांपल्स है, यू कैन रीड दीज एग्जांपल्स एंड यू कैन लर्न दैट हाउ टू राइट और व्हाट इज द लेआउट, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच। बस अब कोई क्लास मत अरेंज करें, दिस इज एनफ फॉर टुडे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। You're welcome, Raman. Thank you for your passion. Allah Hafiz, all of you.